Hello everyone. So today we are discussing about the mechanism of Reimer-Tiemann reaction. What is Reimer-Tiemann reaction? It is basically an formylation of a phenol with the chloroform and alkaline solution to obtain a good yield of the orthosalicylaldehyde. Now, what is the mechanism of this chemical reaction? Well, it involves the electrophilic substitution reaction. What is the real mechanism? Let's understand this. Before it, let's begin with understanding the equation involved in this chemical reaction. So when you treat phenol with a base called NaOH in the presence of chloroform, that is CHCl3, you obtain the first product as the phenoxide substituted on the ortho position. There is addition of CCl2, or let's directly talk about CHCl2. And when you again treat it with a base called NaOH, the formylation step takes place and there is the addition of CHO group on the ortho position on this phenoxide ring. And when you make it react with H plus, the phenoxide ring get converted into the phenol and you get your resultant product, that is the orthosalicylaldehyde. Orthosalicylaldehyde. Now, as previously mentioned, it is an electrophilic aromatic substitution or just electrophilic substitution. So there should be an electrophile of this chemical reaction. So let's discuss about mechanism. Let's start the mechanisms. So the initial step of this reaction involve the reaction of CHCl3 with NaOH or just OH as a nucleophile. So if you look at the structure of this CHCl3, you will find it would look like this. Now this hydrogen is very special. It is acidic hydrogen. Why? Because chlorine has a very good minus I effect by which it withdraws the electron from this carbon and hydrogen. That's why resultant electron density is shifted towards the carbon, and whenever there is an attack of a nucleophile, it attacks on this hydrogen and the resultant things takes place is H2O along with CCl3. Now and there is a lone pair or the negative charge on this carbon because this hydrogen has given its electron pair to this carbon. Now what is the structure of this CCl3? It is like this. Now this Cl bond is very big. This Cl is a good leaving group, and whenever Cl takes out himself, it come out with an bonded electron pair, and it is a rate determining step, that is a slow step, and this trichlorocarbene get converted into the dichlorocarbene, that is the Cl with the vacant orbital. This is called dichlorocarbene, and this is an electrophile of this chemical reaction. So in the mechanism we understood that there is a electrophile called dichlorocarbene which is an electrophile of this chemical reaction. So it is an electrophilic substitution reaction, and electrophile is this, that is the dichlorocarbene. Now let's begin with the first step of this chemical reaction, that is let's take phenol. And when phenol is treated with the NaOH, जब हम फिनॉल को ट्रीट करेंगे NaOH से, तब रिजल्टेंट कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? फिनॉक्साइड आयन. अब देखिए, फिनॉल की जो प्लस आर इफेक्ट होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, वो फिनॉक्साइड आयंस के कंपैरिजन में कम होता है. मतलब फिनॉक्साइड आयंस क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी फिनॉल से ज़्यादा होगी. इसी वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देंगे बिकॉज दे डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द बेंजीन और द फिनॉक्साइड आयन. अब हमारे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? इसके कुछ लुईस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जिससे हम ये समझ सकें कि नेगेटिव चार्ज जा कहाँ रहा है.
So this is O minus and this. So when this negative charge will convert into the pi bond, and this pi bond will convert into the negative charge. So the resultant compound forms is this. Now when CCl2 comes to react with this, it has a vacant orbital. It has a vacant orbital and it is an electrophile. So electrophile will take its electron, okay, and make get bonded with this. जब इसका बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ? CCl2 के साथ. अब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ताकि कार्बन की वैलेंसी क्या हो सके, फुलफिल हो सके. अब इस स्टेप में आपने देखा कि बेंजीन ने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस्ट कर दिया है. बेंजीन हमेशा ट्राई करता है अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने के लिए, तो एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पर गेन होगा. किस तरीके से? देखिए, ये बॉन्ड कन्वर्ट होगा अपने, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू द पाई बॉन्ड, एंड दिस हाइड्रोजन विल रिमूव आउट एज द H+. और इस H+ को कौन अट्रैक्ट करेगा? दिस नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन और द डाइक्लोरोकार्बन. तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ ऐसा होगा. दैट इज दी O माइनस Na+. एक्सपेक्टेड आयन इस पे पास आ जाएगा. एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ द बेंजीन गेन्स CHCl2. ये H+ इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा? बॉन्डेड हो जाएगा. अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे बेस के साथ, NaOH के साथ. थोड़ा यहाँ समझते हैं. देखिए, जब हम CH3 CH2 Cl या हम 2 Cl ले लें, इसकी रिएक्शन अगर हम OH माइनस से कराते हैं तो क्या बनता है? CH3 CH OH OH. ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं और ये डिसोसिएट हो जाते हैं CH3 CH डबल बॉन्डों में. दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन अलॉन्ग विद द OH ग्रुप, और इसी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन. तो रिजल्टेंट ग्रुप क्या बनता है हमारा? फॉर्माइल कंटेनिंग ग्रुप या कार्बोनिल कार्बन कंटेनिंग ग्रुप. सो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी. जब हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो क्या होगा? दिस विल कन्वर्टेड इनटू द फॉर्माइल ग्रुप, दैट इज द C डबल बॉन्ड H along with this O minus and Na+. Now let's make it treat with an H+ ion. जब H+ आयन से हम इसकी रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा? फिनॉल फिर से बन जाएगा और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ये ग्रुप जुड़ जाएगा. अब ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड ही मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है, इसको हम यहीं पर समझ लेंगे. देखिए, इस हाइड्रोजन के इस ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी की वजह से ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाईली स्टेबल. और ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड की जो यील्ड होती है वो पैरा से ज़्यादा होती है. मेटा भी बनते हैं पर वो इतने मिनिमम बनते हैं कि हम उनको कंसीडर ही नहीं करते हैं. ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बनेंगी. इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगी? इसकी मैकेनिज्म कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसके साथ साथ ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड इज द मेजर प्रोडक्ट. इसको हम इरेज करके कुछ सीरीज में पॉइंट्स लिखेंगे. सो की पॉइंट्स की सीरीज हम समझेंगे. तो जैसा कि हमने कहा कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसके साथ साथ क्या होते हैं? फॉर्म प्रोडक्ट पैरा भी होगा, ऑर्थो भी होगा, पर ऑर्थो की क्वांटिटी क्या रहेगी? पैरा से ज़्यादा रहेगी. एंड दे बोथ आर सेपरेबल. इनको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. किससे? स्टीम डिस्टिलेशन से. क्यों? क्योंकि फॉर्म प्रोडक्ट में एक तो क्या होगा?
ज़्यादा वॉलेटाइल होगा और दूसरा क्या होगा, कम वॉलेटाइल होगा। इसके साथ साथ क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाती है। सो दीज आर द सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू द राइमर टीमन रिएक्शन। होप यू लाइक दिस।